everything requires hard work, so much of hard work. And the most hard working field which I feel is film lines. I am saying this because I have an experience of it. मैंने ऑब्वियसली मैंने भी लाइक जैसे सभी शुरू करते हैं वैसे मैंने भी ट्राई किया है शुरू करने का, लाइक अराउंड फ्रॉम 2 to 3 years इट्स बीन। एंड आई एक्चुअली फील दिस कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क जो रिक्वायर करता है वो यही है। यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वाज लाइक totally different because I have worked in corporate sector too, and I even devoted lots of hard work into competitive exams, and I have experience of many more things too. But in my ways, what my personal experience is that the hard work which requires in film industries is beyond explanation, because from the sport boys to the celebrities to the directors to the producer, everyone like working hard, everyone is putting the so much of efforts into making one film in a best way which they can. And I have experience of one VFX film shoot, और वहां पे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बिकॉज आई हैव लो आयरन डेफिशिएंसी इशू, एंड अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग्स डिहाइड्रेशन हिट मी वेरी बैडली एट दैट मोमेंट जब मैं वहां पे शूट के लिए गई हुई थी। और वहां पे कुछ चीजें अनफेयर भी हुई थी, ऑब्वियसली मेरे साथ में हुई थी। द थिंग वाज लाइक कि मुझे एक अलग कैरेक्टर दिया गया था एंड लेटर ऑन दे कास्टेड अनदर गर्ल व्हिच वाज रिकमेंडेड बाय देयर सीनियर, एंड दैट हर्टेड मी एक्चुअली because I have given the audition for that, and that was my first audition for that scene। और मुझे वो बहुत फीडबैक किया था कि ये चीज नहीं होना चाहिए, बहुत अनफेयर है, बिकॉज I fumble a lot. At that moment when I was giving the audition, I was like, if I am putting my efforts into it, so I have to have the payoff of it, na? So that is why I was like कि मुझे वो चीज मिलनी चाहिए थी, but ठीक है कोई बात नहीं। That was like experience for me, and ये सबके साथ में होता है। I'm not a similar person for it कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। Obviously आप सभी ने ओम शांति ओम देखी होगी, जैसे उसमें शाहरुख खान सर ने शुरू किया है सब कुछ, वैसे ही सबके साथ में सारी चीजें शुरू होती है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स शुरू में एज अ जूनियर आर्टिस्ट आप प्ले करते हो, कभी कभी तो आपको क्राउड भी बनना पड़ता है सो दैट विल into that all is okay, but when you know your capabilities, your potential, it hurts, and it hurts a lot। I'm sharing these things because I want to share all these experiences with the person जो लोग अभी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे into the film line or into this criteria। So don't give up if you have potential, if you have caliber, if you have capabilities that you can do what you want, obviously you will do, but this actually demands so much of hard work। And I was healthy at that moment जब मैं बेहोश हुई थी उस सेट पर, और मैंने और भी सारे एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं in this industry, and my first earning was as an actress was 2000। that motivated me a lot, and along with all these things I have given more than 4 to 5 auditions in Varanasi only. I haven't visit any other city because I am homebound person. I can't go anywhere else from Varanasi because Varanasi is my heart. I can't go anywhere. I don't feel comfortable, going any other place. For 4 to 5 days is okay, but total shifting is little bit tough for me. So that is why I'm shifting in my house even। एक घर से दूसरे बगल वाले में मैं आ गई हूँ कि थोड़ा मेरा ये जो होम बाउंड है मैं इसे थोड़ा ईज ऑफ कर सकूँ, ठीक है, ये मेरे साथ नहीं हो पाता है। सो आई हैव टू प्रैक्टिस एंड आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ कि मैं अपने आप को अकेला रख सकूँ। मुझे पता नहीं को अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद है, बट अपने अपने कंफर्टेबल जोन में, लाइक इन माई हाउस आई फील कंफर्टेबल, बट गोइंग एनी अदर प्लेस विच इज फार अवे फ्रॉम योर हाउस, इट इज रियली वेरी टफ फॉर एनीबडी। मे बी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है और मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए भी होगा। सो इफ आई से आई हैव ओनली वर्कड इन 5 to 6 प्रोजेक्ट्स टिल डेट। एड्स वाले तो ठीक थे बिकॉज वो बहुत छोटे छोटे से थे, बट वो वीएफएक्स वाला मैंने इनकम्प्लीट ही किया था, मैंने उसको पूरा नहीं किया था। और वो इतने ज्यादा आपके सिर के ऊपर लाइट्स होते हैं ना कि क्या ही बोलूं, लाइक एक तो ह्यूमिड नेचर था, बारिश का मौसम, वी ऑल नो कि कितना टफ होता है, उसमें कितनी ह्यूमिडिटी होती है, डिहाइड्रेशन इज नेचुरल, किसी को भी हो सकता है। और इतना आइसोलेटेड प्लेस पे था, लोकेशन पे था कि कोई भी फेंट आउट हो सकता है वहां पे। तो मेरा तो बहुत नॉर्मल था यार, मैं वैसे भी मेरे तो इश्यूज हैं। सो वहां पर मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि मुझे लगा कि आई थिंक तो मुझे अभी बहुत ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने हेल्थ पर, अपने ऊपर, एंड आई हैव टू बिल्ड माई कैरेक्टर, माई ओन कैरेक्टर फर्स्ट, एंड देन आई कैन अडॉप्ट एनी कैरेक्टर विच इज रिक्वायर्ड इन एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। एंड बीइंग एन एक्टर
आपको यू हैव टू बी लाइक वाटर, you have to adopt and observe whatever is given to you, right? So as you guys can see, I was still working on me. I'm trying to lose my weight and I forget the dialogues very frequently because my scene is कि मुझे जितनी जल्दी चीजें याद होती है उतनी जल्दी मेरे साथ में गायब भी होती है. So ये मेरे साथ में बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, बट इट्स ऑल राइट, क्योंकि मैं मुझे ये सारी चीजें मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं लगती है, बट सामने वाले के लिए तो लग सकती है ना. सामने वाले को वो चीज नहीं चाहिए, और वहां पे ना बहुत सारे लोग हैं. हम मैं मेरी बात करूँ तो मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं, ठीक है. तो उनको ऐसा नहीं है कि कोई कमी है. कई सारे मुझे फोटो शूट्स के भी ऑफर मिले थे, वो भी आपको अप्रोच करना पड़ता है फर्स्टली, एंड देन दे विल कनेक्ट टू यू. और उसमें फिर वो आपको कुछ क्राइटेरियाज बताते हैं. दे आस्क फॉर सम डिटेल्स एंड दे वांट अ बॉन्ड विद यू, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू विल, इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद देम, यू हैव टू वर्क विद देम टिल द टाइम which is mentioned in the paper. And that was like थोड़ा सा fearful because मैंने ऐसे कई सारे इश्यूज सुने हुए थे कि जिनकी तबियत भी खराब होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब लोग मॉडलिंग के लिए काम करते हैं या फिर मोस्टली सीरियल्स में जब वो कास्ट हो जाते हैं तो उसमें भी उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है. सो ये भी एक मेजर रीजन है मेरा कि ये सारी चीजें मुझे बहुत बॉदर करती है. लाइक इस तरह से रेस्ट्रिक्शन, मतलब मैंने ये सुना है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. जब मेरी तबियत खराब हुई थी ऑब्वियसली तो मैं डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के जस्ट बगल में बैठी हुई थी बिकॉज आई वाज लाइक कि बिकॉज आई लव वाचिंग द मॉनिटर दैट I can see how the actor and actress looking in the monitor so that I even can get the ideas of all these things. मैं उसी चीज पर काम करना पसंद करती हूँ या उसी चीज पर अपना टाइम लगाना पसंद करती हूँ जहां से मुझे कुछ रिजल्ट मिलने के जो चांसेस है, जो सर्टेनिटी है, वो हाई नजर आए. लाइक एज आई पोस्टेड अ व्लॉग अर्लियर, उसमें भी मैंने बोला कि आई वाज इवन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग्स, बट आई एम नॉट पुटिंग ऑल माई टाइम इनटू इट कि मैं इन्हीं पर अपना सारा टाइम लगा दूं और मैं किसी और चीजों पर ध्यान न दूं. शायद उसमें मेरा लिखा हो सक्सेसफुल होना और मैं यही अपने आप को खपा रही हूँ, तो वो चीज तो मेरी चली जाएगी ना, वो मेरे हाथ से चली जाएगी. उसका जो परफेक्ट टाइम है उस चीज पे जो मेरा टाइम लगना चाहिए जिस टाइम पर, वो मैं नहीं लगा पा रही, विच इज लाइक अ बैगेज फॉर मी, राइट? वो हो सकता है कि मेरे लिए या किसी के लिए भी काइंड ऑफ बैगेज हो. वो आपको करना है क्योंकि आपको कहा गया है, आप उसके लिए आपको कंपेल किया गया है. एंड योर पैशन, योर हॉबीज आर टोटली डिफरेंट थिंग. यू डोंट feel exhausted into that, you don't feel tired into that, and in this way you feel happy. आपको कैसा भी रिजल्ट मिले, आपको वो बॉदर नहीं करता, आपको वो चीज हर्ट नहीं करती. बट यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई होती है एंड यू फील लाइक कि ये चीज नहीं हुई सो ये जीने मरने का सवाल काइंड ऑफ हो जाएगा. एंड आई एम नॉट लाइक द पर्सन कि कोई चीज अगर मुझे ना मिले तो मैं उसमें अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर लूँ सिर विर पीट के कि अभी ये नहीं मिला तो अब जीवन खत्म, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अब तो मेरे स्टोरी एंड हो गई. नहीं, आई एम हीरोइन ऑफ माई लाइफ इवन बिकॉज माई पापा टोल्ड मी जान है तो जहान है, और मैं जिंदा हूँ तो मेरा सब कुछ है एंड आई एम हीरोइन ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई फिल्म, एंड दैट इज इनफ. मैं खुश हूँ ऐसे ही. मेरे लिए जो काम करता है या जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काम कर सकता है मेरे फेवर में, मुझे प्रॉफिट दे सकता है, चाहे वो अभी कल कैसे भी, मीन्स मुझे थोड़ा सा भी लगता है ना, मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद की सर्टेनिटी मिल जाती है, मुझे उस चीज से ये लग जाता है कि हाँ ये सही है, यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, तब मुझे ऐसा रहता है कि बस अब यहीं पे डट कर काम करना है. और बाकी चीजों में थोड़ा सा मैं लाइक ऐसा है कि एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ. इस फील्ड में मेरे काफी नोन लोग भी हैं, बट वो कहते हैं ना कि पहचान से मिली काम और काम से मिली पहचान में बहुत अंतर होता है. और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहती, ऑब्वियसली मैं काम करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रही हूँ. लाइक आई एम लूजिंग माई वेट and I am trying to live alone. I am cooking by myself. I am doing my laundry by myself even. And I'm doing all the things, all the stuffs by myself, which is connected to me totally, so that I can live alone in the other cities where I have such work. But the major concern is that जब भी मैं ये चीजों पर काम करूँ तो वो मेरी चॉइस का होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज मेरी इतनी एज सच एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स जुनून वाला, शिद्दत वाला हार्डवर्क, ठीक है? और मैं इतनी हार्डवर्किंग नहीं हूँ, आई एम अ लेजी पर्सन. मैं इतना मेहनत नहीं कर सकती, मैं इतना हार्डवर्क नहीं कर सकती, इफ ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो मेरे एंड से मैंने यहाँ पे गिव अप नहीं किया है. आई एम लाइक कि ठीक है जो चल रहा है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो होगा अच्छा होगा. आई बिलीव इन दिस थिंग. और मैं तो मेरे एंड से टोटली भगवान पे रिलाई करती हूँ. जो उनको करना होगा वो करेंगे, जो उनकी इच्छा होगी उनके अनुसार सब होगा, और वो मेरे लिए बेस्ट सोचेंगे. इफ मैंने मेरे एंड से जो चीजें एक्सप्लोर करनी थी, जो चीजें मेरे एंड से मुझे लगा कि करना चाहिए, मैंने वो कर दिया. बाकी सब भगवान के भरोसे में हूँ कि जो वो डिसाइड करेंगे मेरे लिए वो सबसे बेस्ट होगा, वो सबसे फ्रूटफुल होगा मेरे लिए. अभी भी मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करती हूँ, और ये एक्सप्लोरेशन का कीड़ा ना मेरे अंदर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है हमेशा, और मुझे पसंद भी है. मुझे सीखते रहना पसंद है, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, और मैं ये चीज को बहुत इंजॉय करती हूँ. ये मेरी लाइफ का सबसे मजेदार पार्ट होता है. सो रिजल्ट्स पे
मैं फ़ोकस उतना नहीं करती, जितना मैं इसके प्रोसेस को एन्जॉय करना पसंद करती हूँ और इनसे मिली जो लर्निंग्स है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है। सो इन शॉर्ट एवरी इंडस्ट्री, एवरी फील्ड हैज़ देयर ओन खट्टा-मीठा फ्लेवर, चाहे वो आप किसी भी फील्ड से कनेक्टेड हो, बट सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क इसी इंडस्ट्री में मुझे नज़र आया और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी में है और शायद इसीलिए है। एवरी फील्ड हैज़ देयर ओन स्टोरी, चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी और बुरी, सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है? मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जैसे कि मैंने सावधान इंडिया में बचपन में देखा हुआ था और जब मुझसे बचपन में पूछा जाता था, व्हाट यू वांट टू बी? सो आई वाज़ लाइक कि मुझे सब कुछ बनना है एंड देन जो लोग थोड़े समझदार हुआ करते थे उस वक़्त पर, तो वो मुझसे कहते थे कि सब कुछ बनना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन। सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, तो मैं थोड़ा-सा जब और बड़ी हुई तो मैंने देखा टीवी पे लोगों को और वो कभी मुझे पुलिस के कॉस्ट्यूम में दिखाई देते थे, कभी वो मुझे डॉक्टर बने हुए दिखाई देते थे, कभी मुझे वो नॉर्मल दिखाई देते थे। सो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये कैसे डिफरेंट-डिफरेंट प्रोफेशंस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आई वांट टू बी लाइक दैट पर्सन सो दैट आई कैन एक्सप्लोर ऑल द प्रोफेशंस जो कि मुझे मेरी लाइफ में थ्रिल ला सके बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद था एक्सप्लोर करना, अभी भी। एंड देन आई गेट टू नो दैट दे आर आर्टिस्ट और उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया था दैट आई विल बी एन आर्टिस्ट और धीरे-धीरे जब मैं थोड़ा और बड़ी हुई तो सीआईडी, सावधान इंडिया ये सब के एपिसोड्स मैंने इतने ज़्यादा कंज़्यूम किए कि एक टाइम पे मुझे डर लगने लगा था इन चीज़ों से कि यहाँ पे बहुत चीज़ें खराब होती हैं, बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, फीमेल्स के लिए स्पेशली और आई वाज़ लाइक एट द एज ऑफ 14 और 15 जब मैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करती थी। उस टाइम पे सावधान इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो हुआ करता था। तो वो चीज़ें मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। वो चीज़ें क्या, सभी चीज़ें जो भी हम लोग विज़ुअली देख रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमारी लाइफ़ को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है? बिलीव इट और नॉट बट येस इट्स ट्रू। सो उस वजह से मैंने इसे पॉज़ कर दिया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय स्टडीज़ कि अभी यही कुछ है, यहाँ से कुछ कर सकते हैं, पहले यहीं से शुरू करते हैं एंड आई डिसाइडेड कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए। ड्यूरिंग माय 12th व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल डू यूपीएससी, ठीक है? और 12th में ही मैंने डिसाइड किया था कि आई विल डू ग्रेजुएशन फ्रॉम बीएचयू जो कि मेरा हुआ और जो कि बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद मैंने प्लान किया था कि आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी ड्यूरिंग दिस 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो कि सारी प्लानिंग्स मैंने 12th में ही कर ली थी एंड आई एक्चुअली फील दैट माय चाइल्डहुड विशेस आर कमिंग ट्रू in a different form. Like even I am pursuing different professions. Like I am an astrologer, I am an artist, I am a business person, and a lot of many more things too, which I can't share right now. And obviously, I'll share that things too very soon with you guys. So this is my experience till date related to all these things. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Thank you.